Loss planning. Calculate OLMA's tax adjusted trading loss for the tax year 25-26. Explain with supporting calculations how OLMA's trading loss could be offset her income and or her chargeable gains on the assumption that she does not wish to carry the trading loss forward. Conclude on the most beneficial way of relieving the loss and the tax which would be saved as a result. You should ignore NIC and VAT. ठीक है, या तो लॉस कैलकुलेट करना है ना। यही है ना, ऑलमोस्ट कैफे बिजनेस। यू नो व्हाट, इसको रेडी कर देता हूँ, कुछ किया है तो है नहीं इसने। सेवेंथ वाला ऑलमा, हम लोग को बी का सेकेंड पार्ट करना है ना, ठीक है। वॉलंटरी रेजिस्ट्रेशन फॉर वैट, तो ये तो नहीं होगा। यही है लॉस प्लानिंग। ऑलमा विल प्रिपेयर हर first accounts for 6 months ending 30th of June 2026 and then annually to 30th of June. She is expecting to make a loss in the first 5 months of trading and advice on the release will be available. ठीक है, तो अभी particulars January, February, February, अरे यार, March, मैंने डिलीट ही कर दिया। April। क्या पूरा, जो जो भी तूने किया था पहले? हाँ, मैंने गलत किया था ना शायद, इसलिए मैंने डिलीट ही कर दिया वो। मैंने जो पहली बार किया था तो गलत ही किया होगा, किया था, ये सेम। याद है मुझे। तो तूने कल पहली बार किया था कि उससे पहले कभी किया था? उसके पहले नहीं, अपन अपन ने किया था शायद, बट मेरे को याद नहीं था कुछ भी, तो ऐसा लग रहा था पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले किया था अपन ने, जब शायद मैं काम पे भी जा रहा था तब किया था। हम्म, पढ़ लेते हैं। बजटेड रेवेन्यू फिगर्स इंडिकेट दैट ऑलमा विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर वैट विद इफेक्ट फ्रॉम, however, depending on the financial implications, Alma is considering registering voluntary at an earlier date. This is in order to give the impression that cafe is more established than in reality. All of supplies made by Alma's cafe business are standard rated for the purposes of VAT. On 1st of December 2025, Alma purchased furniture and equipment for the use in the cafe for 8,000 excluding VAT. तो ये ठीक है ना, तो प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो इसको मैं इधर ही ऐड बैक कर दूंगा। लॉस हो गया था 8,000 का। The principal recurring costs incurred by the cafe are employment costs, food and rent in respect of the business premises. The purchase of the food are zero rated and rent is exempt from the purposes of VAT. तो ठीक है, ये सब उन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अभी हमको क्या बताना है कि what are the ways in which this 58,000 का loss can be recovered, right? Yes, they have asked. हम्म। ठीक है। Now Alma can carry back this loss। अच्छा, ये ऐसा कोई ग्रुप कंपनी का सब नहीं है ना? Is an unincorporated नहीं, business, unincorporated अनइनकॉर्पोरेटेड business है। है basically। यस। हाँ, okay, an unincorporated business, so therefore now this loss needs to be settled off, and it has been said that she does not wish to carry forward any losses, and so carry back and carry back current year claim, carry back against total income,
टोटल इनकम, current year claim, and chargeable gains claim are the only three options available to her. ठीक है ना? अभी उसके टैक्स ईयर कैरी बैक ना। अच्छा नहीं, एक मिनट, इतने ही क्यों अवेलेबल है? ओपनिंग और लॉस लीव क्लेम भी तो अवेलेबल है। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ claim are the only four options available to her. मैं सबसे पहले ओपनिंग ईयर कर लेता हूँ, बिकॉज यूजुअली मैंने देखा है कि ओपनिंग ईयर क्लेम आर मतलब मोर सक्सेसफुल। तो अभी ऑल्मा का करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा ना अभी। इन द व्यू ऑफ चेंजेस टू हर फाइनेंशियल अफेयर्स, ऑल्मा हैज अपॉइंटेड अस टू रिप्लेस हर एग्जिस्टिंग टैक्स एडवाइजर्स। बैकग्राउंड: ऑन 1st of November 2018, ऑल्मा परचेज 2000 of the 10,000 issued ordinary shares of BG Limited, an unquoted company, for 40,000, and on the same day began working as a restaurant manager for the company. BG Limited owns and operates a number of restaurants. Alma worked for BG Limited from 1st of November 2018 until 30th of September 2025। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो मेरा ट्रेडिंग लॉस है, एक्चुअली ये मेरा 6 महीनों के लिए, और मुझे जस्ट याद आया कि मेरे को टैक्स ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करना होता है। एज पर दी टैक्स ईयर, दी लॉसेस टिल 5th of April 2026 will, 60 ना, हाँ, will only be allowable। तो समझ रहा है ना? हम्म। The business started in January, and so losses of only 3 months can be settled off। 3 divided by 6। नहीं, नहीं, क्या ये जो क्या? मैंने ये कर दिया बीच में। इज इक्वल मैंने टू, एकदम हाँ। माइंड ब्लोइंग चीज की थी, पता है? इतना क्या की थी? हंसेगा ना तू। क्या किया मैंने था? पहले 3 महीनों का लॉस ले लिया, 12 12 12 करके। ओ, ओ, अच्छा, ओ। भाई इतना इतना बाद में हंस रहा था ना खुद पे कि भाई वाह, क्या दिमाग चला है। राइस 24, 25, 23, 24। तो क्या मेरे को देख देख रहा था क्या कि साहिल भी सेम गलती करता है क्या, चेक करते हैं करके? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था, बट तू स्मार्ट है साला। ऐसा थोड़ी यार भाई, दिया ऐसा तूने थोड़ी ठीक भाई। से। तो थोड़ी चलता है भाई, ये थोड़ी होता है। अरे भाई, फर्स्ट इन लॉसेस में भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहा हूँ भाई। चले देख, हाउएवर शी टुक अनपेड लीव फ्रॉम, तो 22 23 में उसने अनपेड लीव लिया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये 5 मई तक उसने अनपेड लीव लिया था इस टैक्स ईयर में। तो मतलब उसने बाकी के 7 महीने मस्त काम किया रहेगा। ऑन 30th of September शी सीज्ड ऑन सैलरी ऑफ 6,700 per month since 1st of October. Her only income has been trading income from her cafe, which, ठीक है। So सैलरी या एम्प्लॉयमेंट इनकम, obviously they are not the same things. 5 into 6,700, देन 7, इसका 100% साथ ही रहेगा क्योंकि अगस्त तक इसने काम किए हैं
नहीं सॉरी, अगस्त से इसने छुट्टी ली है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से छुट्टी, हाँ बराबर, तो 7 महीने काम किया है। ये महीना उसने पूरा, अरे हाँ, फिर इसने 24 कब बंद किया? 30 सितंबर 25। तो ये टैक्स ईयर में तो कुछ नहीं होता। तो एक्चुअली मैंने ये क्यों किया, फिर मुझे खाली कैरी बैक ही करना चाहिए था ना, तो मैं पहले कैरी बैक कर लेता हूँ। कैरी बैक इसने September 25 तक काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक उसने काम किया। अरे मैं ना यही करने वाला था, अरे मैंने बताया आज जितने भी फ्री ऐसे मतलब पे वो 50 मार्कर के सम किए ना, मैंने ऐसे ही किया कि सबसे पहले जो ऐसे इजीएस्ट फक क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये फ्री शेयर, फिर ये इंट्रोडक्शन हाँ। ऑफ ऑर्गेनाइज पार्टनर, तो इसकी जो एथिक्स के वैट के सम है ना, मैं सबसे पहले वही अटेम्प्ट किए। फिर मैं एकदम बड़े सम पे गया कि हाँ भाई चलो पूरे पहले 19 मार्क के कर लिए 4 सम, अब 2 सम 20 मार्क के बाद में करेंगे करके। हम्म। एम्प्लॉयमेंट इनकम ये हो गया, डन। फिर following disagreements with the other shareholders of BG Limited in relation to the future direction of the business, Olma decided to leave the company to sell her shares. Olma sold 2,000 of her shares to BG Limited on 15th of October 2025 for 1,50,000 via a company purchase of own shares. Olma will claim business asset disposal relief in respect of the chargeable gain on the sales. तो रुक जाते हैं जरा 2 मिनट के लिए। उसने खरीदे कितने के थे? ये क्लोज कंपनी तो नहीं लग रही है। मैनेजर ऑफ द कंपनी शी नहीं लग रही है। उसने 2,000 शेयर खरीदे नहीं, इसने परचेज 2,000 ऑफ दी, ओके ऑर्डिनरी शेयर 40,000 में उसने खरीदे थे, तो क्या मैं करने वाला था यहाँ पे? चार्जेबल गेन्स, ये हो गया। 1,10,000 तक मेरे को आया। गेन्स वुड बी, हम्म। but BADR is available here. BADR is available in this case. So tax will be saved at 10% if set off takes place. तो अभी कैरी बैक किया ना मैंने, खाली कैरी बैक किया है मैंने, लॉस रिलीफ ये लैपटॉप नहीं आया क्या अब तक? नहीं यार, उसको बोलने वाला था, तू ही रख ले अभी वो लैपटॉप, आना आने के बाद भी जो इतना लेट कर रहा है वो। ऐसा ऐसा कुछ है भी नहीं भाई मेरे मेरे वो लैपटॉप में, जिसकी वजह से वो जानबूझ के रुका के रखी है कि हाँ भाई देखते हैं कुछ ब्लैकमेल करने के साहिल को, तो कुछ है ही नहीं। टैक्स सेव्ड एट व्हाट रेट्स? तो अभी ये अच्छी बात है कि साला ये अभी भी हायर रेट बैंड नहीं जा रहा है, तो वो अच्छी बात है। दोनों
तो ये 29,000 विल बी सेव्ड एट 40%. तो 11,600 का टैक्स सेविंग of 11,600 takes place, and thus and also no personal allowance is wasted. कितने मार्क के लिए आया था ये सम? बी का सेकंड हम्म, पार्ट. आधा। अरे माँ, अरे भाई. ओके ठीक है, लॉस हो गया, ट्रेडिंग लॉस. क्या कंक्लूड ऑन द मोस्ट बेनिफिशियल. मैं तो इधर ही चल कंक्लूड बोला करने ना, वाला था भाई, मैं छोड़ने वाला था इधर ही. क्या क्या? बेनिफिशियल करने बोला है ना। यही बेनिफिशियल है ना भाई सबसे, तो ये कैरी बैक कर लिया, दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल. हाँ वही, यहाँ पे क्यों वही बेनिफिशियल है? है। Thus also no personal allowance is wasted, which makes the only carry back option the most beneficial option, as the personal allowance, अरे, still sets क्या हो गया off बीच में? the losses, क्या मालूम, at the higher rate band only. तो ये सब बताना पड़ेगा, मतलब वो हम्म, ओपनिंग या लॉस रिलीफ क्लेम भी. As per the is equal to opening your loss relief claim, the losses can be set off with the profits in the tax year 22-23, as in opening your loss relief claim, the losses incurred in the first 4 years of trading can be carried back to last 3 years on FIFO basis. However, this wastes the personal allowance of, sorry, एक second हाँ, this minus bracket open, this minus 29,000, है ना? 29,000 ही है ना? कहाँ गया? ज्वाइन तो हाँ, नहीं है। हम्म। bracket close, and the remaining PA is also setted off against only 20%. तो इतना जो है, मैं 20% वेस्ट कर रहा हूँ, 29,000 पे 20% सेव कर रहा हूँ. इज द टैक्स सेविंग. ऐसे ही मैं हर एक के लिए मतलब बता दूंगा पेपर के लास्ट के दो दो 2 मिनट में, जितना हो पाएगा उतना. इसलिए तूने तूने वो देखा, मैंने पहले यहाँ पे ओपनिंग ईयर करना चालू किया था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें कैरी बैक ज्यादा मिलता, तो मैंने सबसे पहले जो करेक्ट है वो कर दिया. अब बाकी के जो गलत होंगे वो नीचे करते जाएंगे ऐसे ही टाइम पास में. बट मेन तो यही था हम्म। भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम का ऐसा वो डिस्ट्रीब्यूशन लेके आना. हाँ मेरा वो भी गलत गया था, और मैं फिर बाद में चेक करते समय मेरे लॉसेस तो 36 थे, तो मैंने पूरा सब लिया ऐसा डिलीट कर दिया, मतलब क्या भाई। बाकी सब किया है, बाकी सब में बाकी सब इतना इजी है. ये नहीं है बस। हम्म। ऑर्गन इंट्रोड्यूसेस थियरी था, एज अ बाकी सब पार्टनर. ऑलमोस्ट नीचे। ये पार्टनर की तरह इंक्लूड हो रहा है, हम्म। मतलब वो है ना ये, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, तो हमको दो. ये जो इसका जो आंसर है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह का जो होगा ना यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड हम्म। आंसर तेरे को एसबीआर में लिखना ही है. इसका पेज नंबर बता ना आंसर का. 285।
ये जो है ना, if our firm asks for both the clients personally, then this may create conflict of interest. If Hogan does join the business as a partner, then we should make both Hogan and Alma aware of the potential conflict of interest. We should obtain for permission from both Alma and Hogan to continue to act for them. We should consider whether additional safeguards could be introduced to mitigate the risk arising. Safeguards could include using separate engagement teams for the partnership पर्सनल अफेयर. हाँ, ये सेपरेट एंगेजमेंट टीम्स में हमेशा भूल जाता हूँ. हम्म। Safeguards. If it is also possible to reduce the risk to an acceptable level, then we should consider resigning from one of the engagement, that is either partnership or personal affairs. ये एक है. हम्म। तो ये मेरे को स्टैंडर्ड एक्चुअली आंसर ये है आंसर याद एसबीआर. करते समय हम्म. बोल बोल. सिर्फ रिजाइनिंग वाला ही याद आ रहा था पार्ट मेरे को। फिर मतलब पहला पॉइंट तो रिजाइनिंग नहीं लिख सकता, तो मैंने पहले सेपरेट टीम्स का लिखा था और फिर डायरेक्ट रिजाइनिंग का। मैंने सिर्फ दो ही पॉइंट्स लिखा था, ये बाकी के पॉइंट्स मेरे को नहीं याद थे कि पहले क्लाइंट से पूछना चाहिए कि कोई मतलब ऐसा दोनों को हैंडल करेंगे तो चलेगा क्या, वैसा वैसा वो हम्म. सब फिर नहीं, ये सेम ये। टू सेम स्टैंडर्ड आंसर है जो एसबीएल में आएगा. और ये आंसर बाहर मतलब ऑफ कोर्स इतना छोटा नहीं आएगा. वो आंसर पूरा 20 मार्क का आता है, तो वो पूरा पेज रहता है इतना. 1.5 पेज का वही। आंसर रहता है. लेकिन इसी के अराउंड रहता है, यही मेजर पॉइंट्स होते हैं उसमें. ओके ये ओके। अवार्ड ऑफ फ्री शेयर्स का क्या था? स्टेट द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर इन एस आई ऑर्डर पी फॉर दैट पेएबल. उसको एज फ्री शेयर्स दिया है और एक एस आई पी मतलब एस आई पी के इसमें दिया है, तो कौन सा ये बताना, मतलब उसके टैक्स क्या होंगे वो बताना है, सब कुछ तो है। तो फ्री शेयर्स पे टैक्स लगता है ना, बेसिकली इनकम टैक्स लगता है, और जिस वाले में हाँ तेरे को हाँ। इनकम टैक्स आता है वही तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनता है. ऐसा भी तो तेरे को 5 साल तक होल्ड यस। करना है. यस. हाँ यस। हाँ, डिविडेंड्स है, बराबर है. जो जो डिविडेंड्स आएंगे अब वो डिविडेंड्स एडिशनल तो री परचेज ऑफ इन्वेस्ट शेयर्स. करेगा तो। हम्म. यस। एडिशनल डिविडेंड शेयर्स मस्ट बी डिविडेंड्स री रिटेन विद इन्वेस्ट इन द करेगा तो ही तेरे कंपनी. को वो चार्जेबल नहीं हम्म. होंगे ना, मतलब तो हाँ. सेम एस आई पी में किया तो। हाँ, और ये पता था क्या एस कि आई पी में नहीं, फ्री शेयर्स मिनिमम 5 साल, और जो डिविडेंड के मतलब वो शेयर्स के थ्रू जो डिविडेंड आ रहे हैं उनको रिटेन इन द प्लान फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स. सॉरी, मैंने कहीं जीरो को और ही बना दिया. हाँ। 3 इयर्स. यस। ठीक है, चल. अब बता नेक्स्ट कौन सा करे.